পসিবল? কারণ এর মধ্যে অনেকে যারা ফিল্ডে কাজ করছেন তারা ফিল্ডের থেকে অনেক লোকের কাছেই শুনতে পান, ও আরসিএম আমি তো করেছিলাম, কিছু নাই আরসিএম এ। এই কথাগুলো শোনা যায়, বা আমাদের চারপাশে যারা আছে সবাই বলে আরসিএম ধুর কিছু নেই, এগুলো বাজার করতে হয়, এই ধরনের কথাবার্তা। এবার বাজার যে করতে হয়, তো বাজার তো করতেই হবে, সে আমরা আরসিএম থেকে করি আর অন্য জায়গা থেকে করি, বাজার তো আমাদেরকে করতেই হবে। বাজারের মাধ্যম থেকে যে আমরা এখান থেকে এত বড় একটা ইনকাম নিতে পারি বা এত ভালো একটা কেরিয়ার আছে এর মধ্যে, সবাই সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আর আমাদের ডাব্লিউটিসির মেন উদ্দেশ্যই হয়েছে আমাদের এই সিস্টেম থেকে সবাইকে বা আগামী যে প্রজন্ম আছে তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া, আজকে যেরকম কেরিয়ার হিসাবে কেউ ডক্টরেট, ইঞ্জিনিয়ারিং, এই যে প্রফেশনাল কোর্স হিসাবে সেইগুলো কোর্স করছে, তো আমাদের ডাইরেক্ট সেলিংও আগামী দিনে সেই জায়গা নিতে চলছে, বা অনেক ইউনিভার্সিটিতে ডাইরেক্ট সেলিং এর কোর্স হিসাবে চলে এসেছে। সেদিন আমি গুগলে একটা রিপোর্ট দেখলাম যেখানে পিজি কোর্স হিসাবে ডাইরেক্ট সেলিং আসছে, যেটা 1 বছরের কোর্স ফিস হচ্ছে 1.5 লক্ষ টাকা। 1 বছরের কোর্স ফিস 1.5 লক্ষ টাকা। তার মানে কি নেক্সট আরো 2-3 বছর পর যারা আরসিএম জয়েনিং করতে আসবে তারা ডাইরেক্ট সেলিং এর কোর্স করে তাদেরকে আসতে হবে টাকা দিয়ে, আর সেই জায়গায় আমরা ফ্রিতে পাচ্ছি, যার জন্য অনেকেই ভ্যালু দিচ্ছি না, বাবু বিশ্বাস করতে পারছি না যে এটা কি পসিবল। মাসে 1 লাখ টাকার উপরে আমরা ইনকাম করতে পারবো, হয়তো মনের মধ্যে ডাউট আছে, কিন্তু আমাদের মুরারি স্যার মাসে 1 লক্ষ টাকা ইনকাম করতে গেলে তার যে রাস্তা, যে পথে আমাদেরকে হাঁটতে হবে, সেই যে রাস্তাটা সেদিন স্যার দেখিয়েছিলেন। আপনাদের মাঝখান থেকে হয়তো কিছু লোক ছিলেন, কিছু লোক ছিলেন না, তো স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করব স্যার আজকে আবার সেইটা রিপিট করার জন্য, যে আমরা কত ইজিলি টার্গেট নিয়ে বা আমরা 1 বছরের মধ্যে মিনিমাম 1 থেকে 1.5 লক্ষ টাকা আমরা পার মান্থ ইনকাম করতে পারবো। তো আজকে আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না, আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করব, স্যার আপনি আজকের যে এই আলোচনা আমাদের আপনি এগিয়ে নিয়ে চলুন স্যার, প্লিজ ওয়েলকাম। অসংখ্য ধন্যবাদ রত্না ম্যাডাম, আপনি খুব সুন্দর বলেছেন সবাইকে ডাব্লিউটিসির ব্যাপারে। আর এখানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা রইল। আমরা খুবই সৌভাগ্যশালী যে আজকে করোনার মধ্যে আমরা জুম অ্যাপস পেয়েছি, এবং জুম অ্যাপসের মাধ্যমে আমরা সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। এটা আমাদের খুব একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর 2 নম্বর হচ্ছে হিন্দি মে বলুন या বেঙ্গলি মে বলুন, সবাই বাংলা বুঝবে আজকে আশা করি। শিল্পীরা সবাই हिंदी में बोलिए सर। सब सर हिंदी में बोलिए। हिंदी में बोलिए सर। अच्छा अच्छा हिंदी में बोलिए सर। तो चलो हिंदी में बोलता हूँ, लेकिन क्लियर नहीं है सर। कुछ कुछ असम है, कुछ कुछ बंगाली भी सर साथ में। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहनें हैं, जैसे मानसी मैडम है, रूपन जी भी बंगाली समझता है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बोल भी सकते हैं सर। पूरा समझती हूँ। हाँ पूरा सर। तो हिंदी सबको समझ में आता है क्योंकि हमारा नेशनल लैंग्वेज है। हाँ सर। तो क्या है, सब लोगों को स्वागत है आज का जूम वेबिनार में। और एक चीज जो आरसीएम में जो दिक्कतें थी लोगों को, कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाते थे, पहले भी बहुत सारे लोगों को मिलेगा आरसीएम में ज्वाइन किया था, लेकिन सफलता नहीं मिला। क्योंकि आरसीएम में सबसे बड़ा
प्रॉब्लम होता है कि लोगों को मीटिंग में लेके जाना, क्योंकि लोग सीखने नहीं चाहते हैं। लोग अगर अपना घर से अगर 10 किलोमीटर दूर कोई मीटिंग होगा या 20 किलोमीटर दूर कोई मीटिंग होगा, लोग बोलते नहीं सर मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो इसका कारण लोगों को आरसीएम के बारे में नॉलेज कम था, और लोग जाके सीखने के लिए लोगों को वही मतलब इच्छा नहीं था लोगों को, बहुत सारा प्रॉब्लम इश्यू कर लेते थे। तो आज जूम का कारण हम ऐसा ऐसा लोगों को सुन पा रहे हैं, ये मतलब नामुमकिन है कि आज गांव में बैठे, घर में बैठे, आज मुकेश कोठारी जी, सुरेंद्र भट्ट जी, जिन लोगों को मीटिंग सुनने के लिए लोग 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर दूर जाते थे, 2-2, 3-3 हजार रुपया खर्चा करते थे, तो अब जाके उन लोगों से नॉलेज लेते थे और सफल हो जाते। तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र भट्ट सर, महावीर सारंग जी, बहुत सारा आरसीएम का लीडर है, जिन लोगों को लोग सुनने के बाद 100% सफल हो जाते थे। लेकिन आम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग उन लोगों को नहीं सुन पाते, क्योंकि जाने का प्रॉब्लम और जाने का इच्छा का प्रॉब्लम, विश्वास का प्रॉब्लम, पैसा का प्रॉब्लम, घर से दूर जाने का बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन जूम एप्स का कारण आज हम घर में बैठे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का इतनी नॉलेज ले पा रहे हैं। देखिए क्या बात है, हमारा बच्चों को जब हम पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो हर माता पिता का ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छा टीचर को माध्यम से पढ़ा जाए। तो अच्छा टीचर के लिए कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को गुवाहाटी में लेके जाते थे, कभी दिल्ली में भेज देते थे, कभी मुंबई में भेज देते थे अच्छे टीचर के लिए, क्योंकि अच्छे टीचर का संगत ही एक अच्छे स्टूडेंट बनता है। जी सर। अब आरसीएम बिजनेस में वो लोग कामयाब होता था जिन लोगों ने लगातार मीटिंग में अटेंड किया था, अच्छा लीडर का मीटिंग, अच्छा लीडर का संगत। तो इतने दिन वो मौका नहीं था लगातार मीटिंग में जाना, बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन आज जूम का कारण हम लोग इतनी मीटिंग ले सकते हैं, इतनी मीटिंग सुन सकते हैं, इतनी नॉलेज ले सकते हैं कि आज का दिन में मेरे को ऐसा लगता है कि आरसीएम में आने वाला दिन में हर घर में लोग कामयाबी पैदा होगा, क्योंकि इसका एक कारण है जूम। चलिए ये तो एक बात है, लेकिन आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी लोगों को, इतने दिन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम था, सर आरसीएम लेके किसको बोलो, लोग तो मना करते हैं, लोग समझते नहीं, क्योंकि लोगों को पास बहुत सारा ऑप्शन था। आज से एक दो तीन साल पहले, 2 साल पहले या 1 साल पहले लोगों को पास बहुत सारा ऑप्शन था। चलो आरसीएम नहीं करेंगे कोई बात नहीं, मेरा लड़का तो वही डिग्री ले रहा है, वो बेंगलुरु में जॉब कर रहा है, ये मेरा वो बिजनेस चल रहा है, तो मेरे को आरसीएम में काम करना की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हर घर में लोगों को इनकम जरूरी है, ये क्लियर है, ये तय है। आप जिस घर में जाएंगे, भला वो जो भी काम कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग में एक चीज घूम रहा है कि आने वाला काल में हमारा बिजनेस और हमारा नौकरी, हमारा प्रोफेशन का क्या होने वाला है। कुछ लोग गाड़ी का बिजनेस कर रहा है, कुछ लोग ट्यूशन कर रहा है, कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा है, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, कुछ लोग छोटा छोटा बिजनेस कर रहा है, जो करके इतने दिन अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन आज सारा लोगों को दिमाग में एक संकट आ गया कि आने वाले काल में हमारा जो प्रोफेशन है वो सही रहेगा, उसका रोजगार बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन मैं जितनी लोगों के साथ बात करता हूँ उनका प्रोफेशन के बारे में, सब लोग एक ही बात कहते हैं, भैया आने वाला काल में हमारा प्रोफेशन का जो इनकम है वो घटने वाला है, वो नहीं बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन हमारा जो खर्चा है वो दुगना चौगुना होने वाला है। तो इसलिए हर घर में अलग से एक रोजगार चाहिए। और एक चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम जो जो काम कर रहा है, ये जो काम है इसका जो तरीका है ये आज से चल रहा है या 10, 20, 40 साल से चल रहा है। पहला जो काम है
देखिए कुछ लोग ट्यूशन कर रहा है। अच्छा, ट्यूशन का जो प्रोफेशन है ये 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, ये ना पुराना प्रोफेशन है। कुछ लोग दुकानदारी कर रहा है। अच्छा, ये दुकानदारी का प्रोफेशन कब से है? 10 साल पहले भी था, दुकानदारी कर रहा है, 20 साल पहले भी ये प्रोफेशन चल के आ रहा है। कुछ लोग गाड़ी का बिजनेस कर रहा है, गाड़ी लेके सुबह बाहर निकल जाते, शाम को गाड़ी लेके, वो भी 10 साल पहले लोग गाड़ी लेके निकलता था, 20 साल पहले गाड़ी लेके उसी प्रोफेशन में था। कुछ लोग नौकरी का तलाश में काम नौकरी कर रहा है, 10 साल पहले भी नौकरी करता था, 20 साल पहले भी नौकरी करता था। कुछ लोग होटल खोल रहा है, कुछ लोग रेस्टोरेंट खोल रहा है, कुछ लोग कपड़ा का दुकान खोल रहा है। यानी अलग अलग जो प्रोफेशन है, ये जो प्रोफेशन हमको देख रहे हैं आज, ये प्रोफेशन 10, 20, 30, 40, 50 साल से ये चल रहा है। ये 10 साल पहले जैसा था आज भी ऐसे ही है। 10 साल पहले भी एक दुकानदार सुबह दुकान खुलता था और शाम को अगरबत्ती लगाता था, रात को घर आता था। 10 साल पहले भी एक कर्मचारी सुबह टिफिन लेके ऑफिस जाता था, दोपहर को खाली करता था, शाम को घर आता था। यानी ये प्रोफेशन जो है 10 साल पहले था, आज भी वही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों को, आज से 10 या 20 साल पहले आपका मोहल्ला जिस तरह था, आज वो परिवर्तन हुआ कि नहीं परिवर्तन हुआ? आज से 20 साल पहले आपका नजदीक जो सड़क था वो परिवर्तन हुआ कि नहीं परिवर्तन हुआ? आज से 20 साल पहले लोग जिस तरह कपड़ा पहनता था, आज वो परिवर्तन हुआ कि नहीं परिवर्तन हुआ? आज से 20 साल पहले लोग जिस तरह खाना खाता था, आज वो परिवर्तन हुआ कि नहीं परिवर्तन हुआ? यानी सारा चीज परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारा रोजगार का जो सिस्टम है वो परिवर्तन नहीं हुआ है। वो 20 साल जो था आज भी वही है। इसलिए 20 साल जैसा था आज हम उसी है, ऐसा ही है। 20 साल पहले, 10 साल पहले भी एक दुकानदार दुकान में जाता था, शाम को आता था, आज भी वही है। लेकिन उसी धंधा को कुछ लोग ने परिवर्तन कर लिया, वो इतिहास कर लिया। जैसे गाड़ी का मालिक, वो सोचा मेरे गाड़ी में जितनी पैसेंजर आता है, अगर मैं पूरा इंडिया का पैसेंजर मेरे को मिल जाता है, तो उसने क्या किया, ओला और उबेर निकाल लिया। धंधा हुई गाड़ी का, लेकिन उसने सिस्टम को चेंज कर लिया। उसने ओला और उबेर का जैसा सॉफ्टवेयर खोल लिया, अभी पूरा हिंदुस्तान में उसका गाड़ी का पैसेंजर मिल रहा है। देखिए ये समझने की बात है। कुछ बिजनेसमैन सोचा मेरे दुकान में जितने ग्राहक आ रहे हैं मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं पूरा हिंदुस्तान में सामान सेल करना चाहता हूं। तो कुछ लोगों ने सोचा, उसने अपना परिवर्तन कर लिया। क्या किया उसने? फ्लिपकार्ट, अमेजन खोल लिया। अब देखिए पूरा हिंदुस्तान में उसका कस्टमर मिल रहा है। यानी वही बिजनेस उसने चेंज कर लिया, अभी अरबपति बन गया। अभी ओला उबेर का मालिक अरबपति बन गया। किसी ने होटल का बिजनेस था, उसने सोचा पूरा हिंदुस्तान का होटल अगर हमारा हो जाता, उसने क्या किया, ओयो खोल लिया। ओयो खोल लिया। अभी देखिए ओयो का सिस्टम से हर होटल का कस्टमर उसको पैसा मिल रहा है। होटल वही है, बिजनेस वही है, सिस्टम चेंज कर लिया। जो खोल लिया, जो कर लिया, वो अरबपति बन गया। किसी होटल का मालिक, रेस्टोरेंट का मालिक ने सोचा पूरा हिंदुस्तान में का घर घर में अगर मेरा रेस्टोरेंट से खाना जाता अच्छा होगा, उसने स्विगी खोल लिया। अब देखिए उसका होटल नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसका खाना, उसका रेस्टोरेंट का खाना चल रहा है। तो जो परिवर्तन किया, अभी स्विगी देखिए अरबपति बन गया। यानी जो धंधे को, अपने रोजगार का सिस्टम को जो चेंज कर लिया, वो अरबपति बन गया। तो अभी आरसीएम क्या है? आरसीएम में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे। पहले हम दुकान से खाना खाता था, अभी हम आरसीएम से खाना खा रहे हैं, वो चेंज कर लिया। पहले हमारा पैसा किसी और का घर में जाता था, अभी हमारा पैसा हमारे घर में आ रहा है, चेंज कर लिया। पहले बाजार का सामान का हम तारीफ करता था। एक शैम्पू लेके आया, 10 लोगों को बोला ये शैम्पू अच्छा है, कहाँ मिला? उसका बाजू वाला दुकान में मिलेगा। एक कपड़ा लेके आया, 10 को देखे था, अरे यानी इतने दिन हम दूसरों को तारीफ किया था, अभी हम अपना आरसीएम का तारीफ कर रहे हैं। यानी चेंज कर लिया। तो परिवर्तन में जीवन में आपको बहुत कुछ मिल सकता है फ्रेंड्स। आरसीएम तो ही काम है। इसलिए मैं सब लोगों को ये कहता हूं, भैया
आप जिस भी धंधा में है, जिस भी प्रोफेशन में है, उस इसमें रहो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि आपको प्रेजेंट इनकम दे रहा है। लेकिन आपका माइंड में रहना चाहिए, मेरा इस प्रोफेशन को अपडेट करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए, उसको 2G से 5G में कन्वर्ट करना चाहिए। जो जो किया वो इतिहास किया, और जो नहीं किया वो बैकडेट हो गया। अब देखो, नोकिया मोबाइल हर घर में था, हर का हाथ में नोकिया मोबाइल था। उसने सोचा था, अरे मैं तो बहुत राजा हूँ, मोबाइल का बादशाह हूँ, मेरे को लोग फॉलो करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा नहीं, जमाना बदल रहा है। वो एंड्रॉइड लेके आया, अब सैमसंग, ओप्पो बाजार में आ गया, नोकिया खत्म हो गया। तो चेंज तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मौजूद ही नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने डब्बो वाला टीवी लेके बैठ गया, अब देखो एलईडी आ गया, वो डब्बो वाला खत्म हो गया। कुछ लोगों ने कोडाक फैमिली लेके बैठ गया था, ये तो मेरा वर्ल्ड वाइड मार्केट है, आप देखो कोडाक आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो जो जो लोग ने अपने प्रोफेशन को चेंज किया, देखो टी सीरीज कैसेट था, हर घर में था टी सीरीज कैसेट, रील वाला। वो सोचा था टी सीरीज तो हम बहुत बड़ा कंपनी, हमको चेंज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कैसेट को इतना बना लिया मेमोरी कार्ड में, आप देखिए ये कहाँ हो गया। तो हमको हमारा जो प्रोफेशन है उसको अगर हम चेंज नहीं करेंगे, अगर अलग से कुछ नहीं करेंगे, तो आने वाला दिन में हमारा नसीब में बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। इसलिए मैं सबको एक ही कहता हूँ, आपका घर में अलग से इनकम चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो आज हमारे पास इतनी बढ़िया मौका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप में, जिस सिस्टम के लिए सरकार से लेके पूरा दुनिया आज इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा है। तो हम लोग बहुत खुश नसीब है। आज मैं सबको बोलता हूँ, आज मैं एक शिल्पी जी से बात किया था, वो नर्सिंग है, मैं उनको पूछा, आप जो नर्सिंग में पैसा कमा रहा है, इस जगह में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? आपको 3 साल नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करना पड़ा, यानी 3 साल आपको समय देना पड़ा, तब जाके आप नर्स बने। लेकिन 3 साल कोई इनकम नहीं आया। बहुत सारे लोग आरसीएम से ज्वाइन होने के बाद तुरंत पैसा मांगता है, सर हम तो 6 महीने हो गया, पैसा तो नहीं आ रहा है, सर हमको तो 1 साल हो गया, पैसा तो नहीं आ रहा है। भाई पहले सोचो आपने कहाँ आया। इस दुनिया में आप अगर एक फैक्ट्री को मालिक को देखोगे, जिस फैक्ट्री में करोड़ का सामान बना रहा है, उसको जाके पूछो, आप जिस दिन फैक्ट्री स्टार्ट किया था वो कितने दिन के बाद आपका फैक्ट्री चालू हुआ? कम से कम 3 से 4 साल वो फैक्ट्री में उसको बनाने के लिए उसने टाइम दिया, बिल्डिंग उठाया, मशीनें लिया, इंजीनियरिंग लिया, तब जाके एक फैक्ट्री बनता है। अगर आपका मोहल्ला में अगर कोई बड़ा बिजनेस है, आपका मोहल्ला में अगर कुछ बड़ा बिजनेस है जो पैसा वाला है, उसको जाके पूछो, भैया आप जो आज महीने में 3 लाख रुपया कमा रहा है, ये जो कमाने का धंधा जो आप चालू किया वो कैसे किया? वो आपको बोलेगा, भैया मेरा पिताजी, नहीं तो खुद बोलेगा, हमने 3, 4, 5 साल बहुत मेहनत किया, दिन रात काम किया, खाना नहीं खाया ठीक से, बहुत मेहनत करने के बाद आज हमारा बिजनेस इतना बड़ा हो गया, अभी पर महीना 10 लाख 20 लाख रुपया कमा रहा है। बहुत सारे बिजनेसमैन होगा। तो अगर हम बड़ा इनकम के लिए आया, तो इस दुनिया में ऐसा कोई बड़ा इनकम का जगह नहीं है जहां पर 2-3 साल टाइम नहीं दिया। आप एक क्रिकेटर का लेके, एक सिंगर से लेके, एक बिजनेसमैन से लेके, एक फैक्ट्री से लेके, एक किसी भी इंडस्ट्री में आप जाके जाइए, किसी भी सिस्टम में किसी भी सक्सेस लोगों को देखिए, उन्होंने उस जगह में पहुंचने के लिए 3 से 4 साल मेहनत किया, समय दिया, पैसा दिया, समय दिया, तब जाके उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप किया। आप जाके पूछो ना, आपका जहां घर है उनको जाके पूछो, वो बोलेगा। लेकिन हम और आप उस समय देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है 3 महीना हो गया, हमको इनकम नहीं आ रहा है, यहाँ पर समय देने से ये फालतू है,
6 महीना हो गया इनकम नहीं आ रहा है, समय देना से क्या होगा, ये फालतू है। हम लोग ऐसा सोचते सब। लेकिन आरसीएम बिजनेस ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा इनकम है। यहाँ पर आप इतनी दौलत आता है। हमारा मुकेश कोठारी सर, उस दिन हम सुरेंद्र भट्ट साहब से उनका वीडियो सुना, उनका मीटिंग था। उस सुरेंद्र भट्ट साहब कह रहा है, तो उन्होंने पहले तो उन्होंने क्या किया था, और केबल लाइन का काम किया था। केबल लाइन घर घर में जाके केबल का कलेक्शन देता था। तो आप सुरेंद्र भट्ट साहब का जो इनकम है हर महीना 45 से 50 लाख रुपया। तो क्या होता ना, हर महीना 7 तारीख उनका टेंशन हो जाता था। क्यों टेंशन होता था? क्योंकि बैंक में जैसे ही 45 लाख रुपया आता है ना, तो बैंक मैनेजर उनको फोन करता है, भैया आपके इतने पैसे आ रहा है, उनको आप कहीं ठिकाना लगाओ, नहीं तो आप टैक्स का आंकड़ा में बहुत प्रॉब्लम होगा। आप इसको कहीं इन्वेस्ट करो, इतने पैसा बैंक में नहीं रख पाओगे आप, उसको नहीं तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा। तो जिस आदमी ने केबल लगाया था, आज उनका इतनी इनकम आ रहा है आरसीएम से, अब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा उनका टेंशन है। मुकेश कोठारी के ऐसा ही है, राकेश शर्मा जी के भी ऐसा है, आत्माराम का भी ऐसा है, महाराजाराम सारंग जी का भी ऐसा है। तो बहुत सारे लोग मैं जानता हूं इस बिजनेस में इतनी पैसा आता है, वो भी एक नंबर तरीका से, लेकिन इतनी पैसा आता है उसको कहीं लगाना का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए इस बिजनेस को छूटा मत समझिए, लेकिन इसके लिए कुछ देना पड़ेगा। इस दुनिया में कहीं भी जाओ, पहला आपको देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखिए। जो जो आज मैं अभी देखिए 8 मिनट के बाद फिर दोबारा कनेक्ट होना पड़ेगा। 8 मिनट के बाद फिर मैं आपको कुछ टेक्निक दूंगा। जो आज टेक्निक दूंगा अगर उसको आप यूज करेंगे, मैं 1000% गारंटी दे सकता हूं, आपका जबान से कभी ये नहीं आएगा सर मेरे को लूप नहीं मिल रहा है। आपको लूप फोन करेगा। आजकल मेरे पास रोज 4 से 5 फोन आता है आरसीएम के बारे में समझने के लिए। मैं स्टेज हो गया। एक टेक्निक मैंने यूज किया फिलहाल, और इसका कारण ऐसा मेरा पुरानी जो पहचान वाला था मैं भूल गया था। अभी वो लोग मेरे को फोन करता है, मुरारी जी आरसीएम चल रहे हैं, आप अभी क्या पोजीशन में? आप तो मेरे को एक बार बोला था, अभी क्या पोजीशन आप बोलो ना। मैं तो ये कंपनी में काम किया, डूब गया, अभी आपका आरसीएम इतना सुन रहा हूँ। तो ऐसा रिपोर्ट आज मेरे पास आ रहा है। तो वो टेक्निक मैं 8 मिनट का 7 मिनट के बाद आपको देने वाला हूँ। तो क्योंकि असम का टीम, रत्ना मैडम का टीम मेरा परिवार है। मेरे को ऐसा लगता है असम में जब जाता हूँ इतनी सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है, मुझे को एक बार भी नहीं लगता कि मैं अपना बाहर में गया, ऐसा लगता है मैं घर में हूँ। चलिए कोई बात नहीं। इसके लिए असम का टीम के लिए मेरा बहुत बहुत मतलब उत्साह लगता है कि मैं कुछ करूँ। तो फ्रेंड्स, पहले आज एक चीज अपने दिमाग में ठान लीजिए, आने वाला काल में आज से 4 से 5 साल बाद अगर हर इंसान जो आज आप लोग में जितने 5-7 आदमी को देख रहा हूं ना, अभी आप लोग जैसे चल रहा है, जो लाइफ स्टाइल है आपका, इसको मेंटेन करना है ना, तो अगले 5 साल का, अगले 3-4 साल का बाद आपको कम से कम 1 लाख रुपया महीना चाहिए लगेगा। आप कहीं से लो उसका कोई पता नहीं, लेकिन लगेगा ही लगेगा। लेकिन ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन तो सारा क्लोज है, लेकिन आज हमारा पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, उसको सीखना पड़ेगा। और WTC का जो रूल्स रेगुलेशन है, मैं आप चीज से एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, अगर कोई आदमी आपको ये कहते हैं भैया 1 साल का ट्रेनिंग है, 1 साल का बाद आपको जो ऑफर मिलेगा उसका जो सैलरी होगा उसका 1 लाख रुपया, लेकिन ट्रेनिंग क्या है 1 साल। आप क्या करोगे बोलो? आप ये पूछोगे ना, इतने इनकम 1 साल का बाद 1 लाख रुपया इनकम, लेकिन ट्रेनिंग क्या है मेरे को बोलो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप बोलोगे? पक्का बोलोगे? लेकिन आज WTC के अंडर में मैं तो ये 1000% गारंटी देता हूं,
बाजार में 1 साल का सैलरी के लिए, अरे 20-20 हजार रुपया सैलरी के लिए कितनी पढ़ाई लिखा पढ़ना पड़ता है, कितनी नॉलेज लेना पड़ता है, आप सोच भी नहीं पाओगे। आज का जमाने में 30-40 हजार रुपया का सैलरी के लिए कितनी इंटरव्यू देना पड़ता है, कितनी नोट पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे लोग के अभी पढ़े कर उनको पता है इंटरव्यू बैठने के लिए। मैं देखता हूँ आज भी रेलवे का इंटरव्यू के लिए लोग पढ़ता है, किताब पढ़ता है, वो प्रोजेक्ट बनाता है। तो मार्केट में 20 से 40 हजार रुपया का सैलरी के लिए अगर हम इतनी पढ़ाई करते, इतनी डेडिकेशन है, इतनी पैसा खर्चा करते हैं मास्टर के पास, ट्यूशन के पास, इधर का उधर, लेकिन आरसीएम का 1 लाख रुपया इनकम के लिए मैं गारंटी से कह सकता हूं उसका 1% अगर आप इसमें काम करेंगे तो 1 साल का बाद आपका 1 लाख रुपया आने में कोई रुक नहीं पाएगा साहब, ये पक्का है। लेकिन हमको यहाँ सेट करना पड़ेगा। ये सर हमें करना है। इस 1 साल में WTC का जो नियम देगा वो हमको करना ही ऐसा में कभी कभी देखा बच्चा अपने पिताजी के पास बाइक मांगता है और ये कहता है कि मेरे के बाइक नहीं दोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। कुछ ऐसा मांगता है, मेरे को मोबाइल नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा भी होता है कभी, इन्हें मेरे को चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। छोटा छोटा चीज के लिए लोग इतनी डेडिकेशन हो जाते हैं। तो अगर वही पागलपन अगर हम आरसीएम से करेंगे तो मेरे को आरसीएम का WTC का जो नियम दिया है वो मैं करूंगा ही करूंगा, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ऐसा डेडिकेशन लेना पड़ेगा सर, तब आपको वो मिलेगा। दूसरा चीज है आपका विश्वास रखना पड़ेगा इस सिस्टम में। आपका अपने सपनों पर विश्वास रखना पड़ेगा। देखिए सपना सबके पास है, इस दुनिया में सबके पास है, लेकिन जिसके पास सपना नहीं है वो जिंदा लाश है मेरे हिसाब से। हर बच्चा चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं अपना माँ बाप का नाम रोशन करूं, ये हर बच्चे लोगों का सपना होता है। हर माँ बाप का सपना होता है मैं ऐसा कुछ काम करूं मेरे बच्चों को हर खुशी में दे पाऊंगा, ये हर माँ बाप का सपना है। मैं ऐसा कुछ काम करूं मेरे मोहल्ला का लोग मेरे को रेस्पेक्ट करे, ये हर किसी का सपना है। मैं ऐसा कुछ काम करूं मेरे मोहल्ला में सबका लंबा कार मेरा हो, लोग देख के अचंभित हो जाएंगे, अरे ये कार कैसे लिया है ये लड़का ये लड़की ने, जो भी हो। तो ये सारा सपना होना चाहिए फ्रेंड्स। मैं ऐसा कुछ काम करूं जब जहां चाहे मैं वहां जा पाऊंगा, मैं अपना मर्जी का मालिक बनूं। ये छोटा छोटा ख्वाहिश आपका होना चाहिए। और दूसरा चीज है हर चीज को पाने के लिए आपको त्याग देना पड़ेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए किसी भी चीज इस दुनिया में जितनी अच्छा चीज मिलना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जितना दोगे उससे 50 गुना मिलेगा। ये खुदरत का नियम है। आप एक टोमेटो का बीची एक पौधा बीज लगा दो, आपने एक पौधा लगाया, छोटा से नन्ना से पौधा लगाया, लेकिन इस खुदरत ने आपको कितनी टोमेटो देता है सोचो। आपने एक आम का बीज लगाया, इतना सा काम किया, लेकिन इस भगवान ने आपको इतना बड़ा आम का पेड़ दे दिया। आप भी खा रहे हो, आपके लड़का भी खाएगा, आपका पोता भी खाएगा। इसलिए फ्रेंड्स पहला तो देना पड़ेगा। आरसीएम में क्या क्या चाहिए, आरसीएम में क्या क्या देना पड़ेगा। पहले जो चीज है वो है, पहले ये आपको 1000% आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि आरसीएम का प्रोडक्ट का बिना हम बाजार से सामान नहीं लेंगे। मेरा एक वीडियो निकाला है, मेरा यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। जे 100% प्यार के बिना कुछ नहीं मिलता है। आप किसी भी चीज को पाना चाहते हो, आप अगर किसी को पाना चाहते हो, उसको 100% उसका साथ आपका बॉन्डिंग होना पड़ेगा, उससे
प्रेम भाव इतनी रखना पड़ेगा कि उसका हर चीज आपको प्यारा लगेगा। आरसीएम का हर चीज मेरे को प्यारा लगता है। मेरे घर में कभी कभी एक्सपायरी डेट का बिस्किट आता है और मेरा मिसेज बोलता है अरे तुमको एक्सपायरी डेट बिस्किट लेके आया। मैं बोला ये प्रसाद है, खा लो। लेकिन उससे पहले बाजार से अगर एक्सपायरी डेट बिस्किट लेके आते तो उसको फेंक देता था। लेकिन पता नहीं आरसीएम का एक्सपायरी चीज खाने से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।